हेलो اللہ وبرکاتہ. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. حضرت سید ایوب اشرف صاحب بول رہے ہیں. बताइए. حضرت ہم نے کیا ہے حاجی جا رہے تھے تو ہم نے اجازت دے دی تھی کہ مسجد نبوی کے امام کے پیچھے ہی جماعت سے نماز پڑھیں. شک کی گنجائش رکھنا اچھا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کی مسجد ہے میں بدعقیدہ کھڑا نہیں ہو سکتا. क्या क्या میں نے کہا کہ جو اللہ جو حج کو جا رہے ہیں میں کہ مسجد نبوی میں جماعت سے نماز پڑھیں امام کے پیچھے، کیونکہ اللہ کے رسول کی مسجد ہے میں بدعقیدہ کھڑا نہیں ہو سکتا. اب یہ سب تو ہمارے پاس تحقیق نہیں ہے وہاں کی. تو میں نے اجازت وہاں بدعقیدہ ہے یا ہمیں کیسے اجازت دے سکتا آپ کو؟ اب میں آپ کو اجازت دینے کے لیے کہاں سے اہل ہوں؟ ہاں میں نے میں آپ کو کیوں اجازت دوں گا کہ آپ پڑھیے یا نہ پڑھیے؟ یا آپ کے ثواب دید پہ آپ پڑھیے اور چاہے نہ پڑھیے. ہاں ٹھیک ہے. اور ہم جو نماز پڑھا رہا اس کے عقیدے کی میں نے تحقیق تو کی نہیں ہے. یہ تو میں اتھینٹک بتا سکوں کہ وہ اس نے جو ہے کفر کیا یا نہیں کیا ہے، یا وہ جو ہے اشرف علی تھانوی اور رشید احمد گنگوئی اور اسماعیل دہلوی اور دنیا بھر کے جتنوں نے اپنی کتابوں میں گستاخی کی ہے اس پہ وہ قائل ہے. وہ پڑھتے بھی نہیں اب یہ ہے کہ آدمی کی روش کو دیکھ کر آدمی خود ڈیسائیڈ کرے. صحیح بات ہے. بہت اچھی آپ نے بہت اچھی بات کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ماشاء اللہ. حضرت جیسے میں یہ دلیل دیتا ہوں کہ قرآن کا حافظ کافر مشرک گستاخ رسول نہیں ہو سکتا. وہ پکے حافظ ہوتے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. نہیں، گستاخ رسول کے سینے میں تو قرآن محفوظ نہیں ہوگا. وہ اللہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ وہ حافظ قرآن گستاخ رسول نہیں ہو سکتا. یہ کوئی وہ اتھینٹک چیز تھوڑی نا. ایمان ایک جگہ جمع نہیں ہوگا نا، جیسے قرآن کنزل ایمان ہے. اب وہ الگ چیز ہے کہ قرآن اور وہ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا. اب اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جب اس نے یاد کیا تو تھا، بعد میں اس کے دماغ نکل جائے گا ذہن سے. تو اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ کسی کو حافظ قرآن رہ جانا الگ ہے اور نکل جانا الگ چیز ہے. سب اللہ کی قدرت سے. ہاں میں نے بتایا شیعہ لوگوں میں حافظ نہیں ہوتے، وہ گستاخ صحابہ ہوتے ہیں تو ان میں حافظ نہیں ہوتے. یہ بھی مجھے نہیں، میری نالج میں نہیں کہ شیعہ میں ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں. غالی درجے والوں میں نہیں ہوتے. نہیں، میں بتا تو رہا ہوں میری نالج میں نہیں ہے کہ شیعہ میں حافظ قرآن ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. ہاں جیسے حضرت میں نے 2 حدیث سے دلیل دیا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں نصرت بالرعب ماشاء اللہ آپ خود ہی اہل ہیں تو آپ کو کسی پوچھنے نہیں چاہیے. نہیں، میں آپ سے اس کی تصدیق چاہ رہا ہوں. تصدیق تو اس سے کیجیے کہ جس نے وہاں پہ جو ہے جا کر کے ان سے مسئلے مسائل پہ بحث کی. ہاں صحیح بات ہے. کبھی تحقیق کی ہوگی تمہارے کیا عقیدہ ہے، تقویت الایمان کی عبارت کو مانتے ہو کہ نہیں، صراط مستقیم کی عبارت کو مانتے ہو کہ نہیں. بس متا امام احمد رضا فاضل بریلوی نے جو کیا کہتے ہیں اپنی کتاب جو وہ فتوے کی کتاب رکھی تو اس کو وہ تائید کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. ہاں وہ اب تھوڑی کریں گے. اب تو انہیں وہاں بھی مانتے ہیں، مسلمان نہیں مانتے. اب تو آج کے لوگوں کو، پہلے والوں کو مانتے تھے جب مطلب تھا تو مسلمان تھے. میں بتا رہا ہوں کہ اب وہ فتاوی امام الحرمین پہ ان کی کیا آپ جائیے گا تو امام صاحب سے پوچھ لیجیے گا. حضرت علامہ ظفر ادیبی جو تھے نا مبارک پور اشرفیہ میں، انہوں نے نہیں مانا تھا فتاوی امام الحرمین کو، ان کو نکال دیا تھا اشرفیہ سے حافظ ملت نے. اب وہ بھی مجھے اس کی نالج نہیں ہے. یہ مکن پور والے نہیں مانتے، علماء فرنگی محل نہیں مانتے، بہت ساری جامعہ ازہر مصر والے، وہ تو آزاد خیال ہے. جامعہ ازہر مصر والے وہ کسی کو ہی نہیں مانتے. دیوبندی بریلوی کوئی مانے نہ مانے ہم تو مانتے ہیں. ہاں وہ تو جو گستاخی کرے وہ تو کافر ہے، سب مانتے ہیں اس بات. اب یہ ہے کہ بنا کسی کی تحقیق کو کسی کو کافر نہیں کہنا چاہیے. ہاں نہیں کہنا چاہیے جب تک کہ اس سے قائل نہ ہو جائے. جب تک کہ اس کے کفر کی جو ہے آپ کے پاس جو ہے باضابطہ طور پہ کوئی سند نہ ہو. میں نے یہی بتایا. حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کفر جو ہے کفر پلٹتا بھی ہے. جیسے حضرت میں نے کہا منصور حلاج رحمۃ اللہ منہ سے اندر حق نکلا. لیکن دیوبندی بریلوی دونوں ولی مانتے ہیں اس لیے کہ ان کی ولایت ظاہر تھی بعد میں، لیکن ان کی توبہ کا ثبوت تھوڑی ہے. یہ حسن ظن کی بنا پر کہ اللہ نے فرمایا جو بندہ نوافل زیادہ پڑھتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں. وہ تو اللہ اس کا رسول جانے نا کیا ہے. ہاں لیکن منصور اللہ رحمۃ اللہ علیہ، لیکن یہ ہے کہ فتویٰ تو ظاہری پہ لگے گا نا، عمل پہ ہی تو نیت کا دار و مدار عمل پہ تو رہے گا. ہاں لیکن ان پہ فتویٰ لگا. لیکن ولی تو آج دونوں مانتے ہیں، بریلوی دیوبندی، حضرت منصور اللہ کو. ہاں وہ تو ہے. ہاں دونوں ولی مانتے ہیں، بڑے ولی مانتے ہیں حضرت منصور اللہ. ظاہر سی بات ہے، ایک ولی کی تحقیق دوسرا ولی کر کے چلا جاتا تو اس لیے مانتے ہیں. ہاں بعد میں تحقیق ہوئی نا ان کے بارے میں، پہلے تھوڑی ہوئی. تو اب آج کے دور میں اس پائے کے ولی کہاں ہے کہ جو دیکھ کے بتا دیں. یہ حضرت 2 حدیث سے میں نے جو دلیلیں دی تھی آپ سن لیں کہ حضور نے فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، اللہ نے میری رعب کے ذریعے مدد فرمائی 1 مہینے کی مسافت کی دوری تک. اب یہ ہمارے سامنے سے حدیث گزری ہوتی تو میں آپ سے کہتے تھے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. حضرت علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ لکھا تفسیر المشاہ جو حالت کے والد ہیں، انہوں نے بہت اچھی بات ہے.
तो उन्होंने लिखा है, और उन्होंने तर्जुमा वही किया जो देवबंद वाले करते हैं। तफसीर हमशा में जैसा तर्जुमा देवबंद वाले करते हैं वैसे ही वो करते हैं। अब देवबंद वाले क्या तर्जुमा करते हैं हमारा, वो तो जाहिर पढ़ते हैं। जाहिर तर्जुमे पे फतवा थोड़ी लगता है, दिल का क्या मामला वो देखा जाता है। दिल पे फतवा ही नहीं है। हाँ, दिल पे फतवा तो नहीं, लेकिन अमल पे फतवा है। हाँ, जबान पे है। हाँ, लेकिन जबान पे जब है कि जब वो दिल से आप कुछ भी कह डालिए अपने दिल के अंदर। हाँ हाँ, नौज़ुबिल्लाह, अल्लाह को दो कह दीजिए। नहीं, जैसे मोहम्मद रफी ने गाना गाया, खुदा भी आसमान से जब जमीन पर देखता हुआ, तो जबान काफिर है उसकी, दिल को हम काफिर नहीं कह सकते कि जब तक वो होते नहीं और हम उनका अकीदा मालूम नहीं कर। फतवा तो लगेगा ना। हाँ, फतवा गाने पे फतवा लगा कुफ्र का, तो उनसे किसी ने नहीं दिया काफिर होने का फतवा। अरे भाई, फिल्म इंडस्ट्री में तो बहुत कुछ होता है, कौन किसको नजर डालता है। हाँ हाँ, वही मैंने कहा भाई। देखिए उन पर मतलब वो हम किसी के आइडियल नहीं है। हाँ, बेशक। लेकिन कोई उलमा होता तो उलमा आइडियल होता है, तो आइडियल ही पे आदमी को टारगेट करता है। आना तो बहुत सी चीजें आती जाती रहती फिल्म इंडस्ट्री में होती रहती है, तो उनको सनद बना के जो है इस्लाम थोड़ी चलेगा। नहीं, इस्लाम नहीं चलेगा, वो उनकी उनके वहाँ तो कोई किसी से शादी कर ले वो सब जायज है। हाँ, इस्लाम में थोड़ी ना है। इस्लाम में तो ये है कि अगर कोई गैर मुस्लिम से शादी करता तो होती नहीं ना, निकाह ही नहीं होती नहीं है। अहले किताब से तो निकाह जायज है, लेकिन गैर मुस्लिम से नहीं है। अहले किताब भी उस लेवल के अब रह नहीं गए हैं। अब वो तहकीक के बाद पता चले कि किस लेवल का है। बात समझ रहे हैं, वो अहले किताब भी क्या, अब तो उसमें भी तहरीफ करा दी गई। हाँ, इंजील में, ज़बूर में, इन किताबों में तहरीफ। वो वाले अहले किताब कहाँ रह गए। हाँ, बेशक, सही बात है। मैंने हजरत ये भी बताया कि जैसे काजी शमसुद्दीन जौनपुरी जमाने में एक कहता था कि तू मेरा खुदा नहीं, मैं तेरा बंदा नहीं, मैं तेरी बात क्यों मानूं। तो अब उन्होंने उनको बुलाया कि उसकी तहकीक करेंगे, पहले से बुलाओ जो ऐसा कह रहा है। कहा क्या मुराद होती है आपकी? कहा मेरी मुराद होती है नफ्स कहता खाना खा ले, पानी पी ले, मैं उससे मुखातिब होकर 13 साल इसी बात के लिए तो उनसे हुई थी। तो 13 साल में मुराद ही तो पूछी जा रही थी, कहाँ मुराद अपनी बता पाए। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो 13 साल में अगर अपनी मुराद बता देते तो ये फतावे शामुल अरमीन काहे छपती। लेकिन वो तो इनकार करते थे, मेरा ये नियत नहीं है जैसा है वो हजरत। हाँ, वो इनकार तो करते थे कि मेरी ये नियत नहीं है जैसा हजरत फाजिल बरेलवी समझ है तौहीन की। कहा उसको तो मैं भी काफिर मानता हूँ जो तौहीन की नियत से तो वो तो अलग बात है, किसी ने कायल को माना है, किसी ने जो है कौल को माना है। अब जैसे वो तो अलग बात है ना। किसी ने कहा कि फिरंगी महल ने कहा कि हम कायल को नहीं मानते, हम कौल को मानते हैं। किसी ने कहा कि हम कायल को मानते, तो अलग बात है ना। तो अपनी अपनी सोच है। हाँ, अल्लामा अब्दुल बारी फिरंगी महली ने फतवा नहीं लगाया था कुफ्र का उन पर। हाँ, तो ठीक है, मगर उन्होंने उसको कुफ्र के जुमरे में तो लिया था ना। हाँ, वो इबादत अगर कुफ्रिया है तो कुफ्रिया मानेंगे, हम भी मानेंगे। वही यही तो बात है, इबादत को लिया उन्होंने, मेरी तहकीक नहीं है। हाँ, उन्होंने जो है उस चीज को मतलब ये देखा कि भाई जाहिर सी बात है कि आप हमसे पूछ रहे हैं कि वहाँ का इमाम के बारे में आपकी क्या थी, जब मेरी तहकीक नहीं तो मैं यही तो कहूँगा कि मैं कैसे कह सकता हूँ कि वो उन्होंने कुफ्र किया या नहीं किया। हाँ, ये बहुत अच्छी, ये आपने बहुत अच्छी। हाँ, किसी को शशपन में रखा जाए, जो पढ़ रहा उसे पढ़ने। यही बात फिरंगी महल ने भी कही थी कि भाई हमने आपने तहकीक की, आप जान रहे हो, आपके हिसाब से होंगे। हाँ हाँ, हमारा उनसे करस्पॉन्डेंस थोड़ी ना हुआ है। हाँ, जिसका दिल कबूल नहीं कर रहा ना पढ़े, जो पढ़ना चाह रहा पढ़ने दो उसे। वो तो अलग बात हो गई ना। वो क्योंकि हुजूर का फरमाने में सवाद आदम की इत्तिबा करो, मेरी उम्मत गुमराही पे जमा नहीं होगी। पूरी दुनिया होती है, एक हमने अनजान में किसी के पीछे कुछ कर लिया हो जाएगी, लेकिन हमने जानबूझ के पढ़ लिया तो नहीं होगी। अब वो जैसे अपन को कंफर्म नहीं ना इसका अकीदा कुफ्रिया है, तो अपन किसी को रोक नहीं सकते हैं। रोकने के लिए कौन रोकता है? हाँ, क्योंकि अल्लाह के रसूल की मस्जिद का इमाम है और अल्लाह के रसूल करीब में ही है, आराम से। अरे भाई, ये मत कहिए कि वहाँ तो पूरी हुकूमत ही जो है पूरा जन्नतुल बकी तोड़ दिया और क्या जन्नतुल माला तोड़ दिया, तो वैसे क्या कहेंगे, उन्हीं की हुकूमत के अंदर तो सारी चीज हो रही है। हाँ हाँ, बिल्कुल। ये आप कैसे कह सकते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वहाँ पे हो, ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, क्या किया जाए, जैसे अजमेर शरीफ हम जाते हैं तो वहाँ शिया लोगों का मामला है, लेकिन इमाम ये भी गलत है कि शिया लोग का मामला है, क्यों हम लोग नहीं जाते, हमें शिया नहीं मिलते, आप ही लोग को सबको सब शिया मिल जा रहा है। ये बरेली वाले कैसे कहते हैं सब शिया? बरेली वाले क्या वो मतलब सनद है कि जिसको जो कह देगा वही हो जाएगा? हाँ, सही बात है। आप वो असली में इनका सलाम लिखा नहीं पढ़ने देते ना, इस पर वो कहते हैं अरे भाई सलाम पढ़ने को मना नहीं करते, वहाँ सलाम पढ़ो। हाँ, अरे भाई साहब, वही जाहिर सी बात है, एक है नात है, एक है सलाम है। सलाम जो है जात पे होता है और नात जो है वो शख्सियत पे होती है। हाँ, नहीं वो यही देखते हैं कि ये बाद में सैयदी आलत पे सलाम भेजते हैं। अजमेर शरीफ का कहना है कि सलाम पढ़ना तो जात पे पढ़ो, हाँ, बात पे मत पढ़ो। हाँ, ये बहुत अच्छी बात की। यही मैं कहता हूँ कि सलाम पढ़ने को मना नहीं करते, वो ये लोग मानते नहीं है कि बाद में हालत पे लाखों सलाम भेजेंगे।
صحابہ کو ایک سائڈ کر دیتے ہیں, اہل بیت کو. اعلیٰ حضرت نے جو لکھا ہے کہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ, بھی کیا پڑھ منع تھوڑی کر دیا اعلیٰ حضرت نے کسی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھنا ہے. ارے انہوں نے تو ترتیب بار لکھا, اصدق الصادقین سید المتقین یعنی صدیق اکبر پہ لاکھوں سلام, وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا ثقل خدا حضرت, ترتیب بار لکھا ہے, پہلے ابو بکر صدیق پھر حضرت عمر عثمان غنی. جب دیکھیے دو طرح سلام ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے ہم صفات پہ سلام پیش کر رہے ہیں, ایک ہوتا ہے ہم ذات پہ. تو اللہ کا حکم ذات پہ ہے نا, صفات پہ نہیں ہے. لیکن نعت پڑھنا گناہ تھوڑی نا, نعت تو سرکار کے سامنے جو ہے بہت سے لوگ پڑھتے تھے. نہیں وہی میں دلیل دیتا ہوں کہ اجمیر شریف کے خدام لوگ خواجہ غنی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آرام فرمائے. ایک بات سمجھ لیجیے, آپ کے گھر پہ آگے کوئی بدتمیزی کرے گا تو آپ برداشت نہیں کریں گے چاہے کہیں کا ہو. ہاں بالکل, یہ مسئلہ کے آزاد کے نعرے جو ان کا نظام ہے, جو ان کا نظام ہے, جو ان کا سسٹم, وہ اپنے نظام اور سسٹم کو چلانا چاہتے ہیں. نہیں میں نے بتایا کہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ان کے سسٹم کو کوآپریٹ کریں. بہت اچھی بات کی. 12 لاکھ آدمی وہاں پہ آ رہے ہیں, ان کا کھانا پینا رہنا ٹھہرنا سارا انتظام میں آدمی الجھا رہتا ہے. اب وہاں پہ آدمی جا کے جو ہے ایڈمنسٹریشن کو ڈسٹرب کرے یا وہاں کے انتظامیہ کو ڈسٹرب کرے, وہاں کے لوگوں کو ڈسٹرب کرے, تو اس سے اچھا کہ جائیے. اور حکم بھی ہے کہ آپ کسی کی بارگاہ میں جا رہے ہیں, ادب سے جائیے, خاموشی جائیے, پڑھ کے چلے آئیے. حضرت شیخ علاؤالدین صابر کلیری کا نعرہ نہیں لگتا اجمیر شریف میں, کتنے بڑے ولی ہیں. شیخ نظام الدین اولیاء کا نعرہ نہیں لگتا, اور ان کا نعرہ کیسے برداشت کریں گے 14ویں صدی کے مولویوں کا. ہم کہہ رہے ہیں جب آپ خواجہ غنی نواز کو یہ مانتے ہیں کہ وہ جو ہے اپنی قبر میں زندہ ہیں, تو جب اگر مانتے ہیں تو پھر اسی حساب سے جائیے. مگر یہ تو اپنے حساب سے جا رہے ہیں کہ ہم تو یہاں اپنا مسلک چلائیں گے. 5واں آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ جب خواجہ غنی نواز حیات ہوتے تو کیا آپ اسی انداز میں جو ہے ان کے سامنے آواز لگاتے؟ کیا بات ہے, یہ بہت پوائنٹ کی بات کی آپ نے. یہاں وہ اگر حیات مان رہا ہو, اگر وہ سامنے ظاہر میں ہوتے تو کیا ایسا نعرہ لگا لیتے مسلک اعلیٰ زندہ باد ختم بات. ہاں بھائی مفکر اسلام حضرت سید سرور چشتی صاحب نے بھی یہی بات سلجھی بات کرتے ہیں, بہت اچھے آدمی ہیں سید سرور چشتی صاحب. اب تو انہوں نے داڑھی بھی رکھ لی, نورانی چہرہ ہے, ان کے بیٹے نے بھی داڑھی رکھ لی. پہلے داڑھی پہ اعتراض کرتے تھے, اب دونوں نے داڑھی رکھ لی, اب کیا اعتراض ہے بھائی؟ دیکھیے داڑھی رکھ کے کیا برائی نہیں آدمی کرتا ہے, یا داڑھی نہ رکھ کر برائی نہیں کرتا. لیکن پہلے ان کا اعتراض تھا, دونوں نے رکھ لی داڑھی, اب اچھا نورانی چہرہ لگتا ہے دونوں کا, کامران چشتی صاحب کا بھی, ان کا بھی, سید سرور چشتی صاحب کا. نہیں تو اب یہ دیکھیے, آدمی کسی کو ٹارگیٹ کرتا ہے تو اس کو کسی نہ نہیں ملتا, کہیں داڑھی مل گئی. ہاں داڑھی مل گئی. ان لوگوں نے کیا ہے نعرے آلات کے لگائے نا وہاں, اور بستی بستی کریا کریا کے, تو انہوں نے مار پٹائی کر دی گئی. یہاں بستی بستی کریا کریا کر رہا ہو آ کے تم لوگ اجمیر شریف میں آ کے, درگاہ شریف میں. میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ, میں جو بات کہی آپ اس کو سمجھیے کہ آپ خواجہ غنی نواز کی بارگاہ میں جا رہے, با ادب با نصیب, بے ادب بد نصیب. بے ادب بد نصیب. بس یہ ہے کہ آپ یہ اگر سوچ کے جا رہے ہیں کہ میں وہاں پر جا کے اپنی ڈکٹیٹرشپ دکھاؤں گا, تو آپ ادب کے دائرے میں نہیں ہیں, بے ادبی کر رہے ہیں. اور اگر آپ اس کو اعلی رسول مان رہے ہیں تو اعلی رسول مان رہے ہیں, تو اس کا مطلب اعلی رسول کے سامنے بھی مد مقابل کھڑا ہونا یہ بھی کہاں سے ہے, جس کے تعلق سے قرآن میں نص قطعی ہے کہ ان کی محبت کے لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اپنی امت سے کہیے کہ میری آل سے محبت کریں. کیا بات ہے, ہاں بالکل 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 بالکل. تو جو اس کا مطلب جو بھی قرآن کی آیت ہے اس پر آپ نہیں مانتے. قرآن میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت, بے شک اللہ تو چاہتا ہے اہل بیت تم سے ناپاکی کو دور ہی رکھے. اور فاضل بریلوی نے ترجمہ کیا کہ تم سے ناپاکی دور کر دے. تھانوی صاحب نے کیا کہ تم سے ناپاکی کو دور ہی رکھے. تھانوی صاحب ناپاکی نہیں مانتے اہل بیت میں, وہ الگ بات ہے. نہیں دونوں کے ترجمے میں فرق ہے. اب یہ کہتے ہیں وہ انہوں نے ایسا کیا, میں کیا کہیں انہوں نے بہتر کیا ہے, کہیں انہوں نے بہتر کیا. دونوں کا ترجمہ الگ الگ ہے اپنے اپنے حساب سے. جس کا تمہیں جہاں اچھا لگ رہا ہے مان لو, یہ ترجمہ میں لڑائیاں کیوں کروا رہا کہ انہوں نے ایسا کیا انہوں نے ایسا کیا. دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ ترجمے میں سے یہ عکس نکالا جاتا ہے کہ کس میں جو ہے زیادہ جو ہے رسپیکٹ کا پہلو نکل رہا ہے. ہاں بے شک بس یہ ہے. نہیں ہم جتنے عقیدے کے ساتھ جو عقیدت کے ساتھ جو اپنی بات کو رکھی وہ مانی جاتی ہے. تم بھی کہہ سکتے ہیں, آپ بھی کہہ سکتے ہیں, تم میں بھی مخاطب سامنے والا ہے, آپ بھی مخاطب سامنے والا ہے, لیکن لوگ جو ہے آپ کا استعمال اس لیے کرتے ہیں کہ آپ میں ادب ہے, تم میں جو ہے بید بھی ہو. کسی جگہ پہ تم کو بید بھی مانا ہی نہیں جاتا ہے. وہاں تو تڑائی سے بات ہوتی ہے تو ہم لوگ جیسے بمبئی جاتے ہیں تو ہم کو لگتا ہے کتنی بدتمیزی سے بات کرتے ہیں, اور لیکن وہی جو ہے بمبئی والے کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ تو کہتے ہیں تو آپ تو پہ بات یاد آ گئی. جیسے بریلی والے اللہ کے رسول ہر جگہ حاضر ناظر مانتے ہیں. خود فاضل بریلوی نے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو اللہ کے رسول سے ہی تو مخاطب ہیں.
हाँ हाँ हाँ। तो फिर एक तरफ तुम हाजिर नाजिर भी मान रहे हो, मुखातिब भी हुजूर को इस तरह दे रहे हो, तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का, तू है एने नूर, तेरा सब घराना नूर का। तो तुम दूसरों के जब उसमें नुक्स निकाल रहे हो तो फिर इसमें भी कोई नुक्स निकाल देगा था। सही सही। जमीन और जमा तुम्हारे लिए, चुनी न चुना तुम्हारे लिए, कितनी जगह उन्होंने इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। हाँ, अब कुछ चीजें तो ऐसी भी होती है, तू कुछ जिंदा चीजें जो है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, जब हाजिर नाजिर मान रहे हो तुम लोग, तो फिर इस तरह से जब आप कोई अपने पीर को ये नहीं कहेगा तू किधर, तू पीर कल किधर जाएगा, तू उस्ताद कल, अपने पीर को तो नहीं कहेगा सामने जब मौजूद होगा। अल्लाह के रसूल को हाजिर नाजिर मान रहे हो तो फिर ये इस तरह से कैसे शायरी हो रही है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। तो इसका मतलब अकीदे में तजाद पाया जा रहा है, एक तरफ हाजिर नाजिर मान रहा हो, दूसरी तरफ कुर्सी पे बैठ के तकरीर कर रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, हुक्के पी रहे हो, बढ़िया पी रहे हो, फिर कह रहे हो कि अल्लाह के रसूल हर जगह हाजिर नाजिर। हाँ, तो वो जब हो रहा है ना भाई, उनके भी फतवे के ऊपर लोग जो है हज़रत मुहद्दिस आज़म कशमीरी रहमतुल्लाह अलैह ने तर्जुमा किया, इन्ना अर्सलना के शाहिदा, हमने आपको भेजा गवाह बनाकर। उन्होंने शाहिद का तर्जुमा गवाह किया है। गवाह सही तर्जुमा है। गवाह के माने नहीं है कि हर जगह हाजिर नाजिर। किसने तर्जुमा किया है? हज़रत मुहद्दिस आज़म कशमीरी रहमतुल्लाह अलैह। अच्छा। मारिफुल कुरान में उस तर्जुमे पे भी बरेली वालों ने इतराज किया, जब हज़रत शेखुल इस्लाम मदनी मियां साहब ने उसके मार्सन बताए ना, अच्छाइयाँ बताई, तो देखो मदनी मियां साहब ने ऐसा किया और हमारे कंजुल ईमान के तर्जुमे में नुक्स निकाले। अरे भाई तुम लोग भाई इसी चक्कर में कौम को बर्बाद कर दोगे, यानी बस अपना ही सिक्का और अपना झंडा बुलंद करना चाहते हो कि बरेली सबसे ऊपर रहे। भाई असल में होता कि पहले बुजुर्ग का कहना था कि अगर मेरे में कोई कमी हो तो मुझे बता देना ताकि मैं अपनी इस्लाह कर लूँ। हाँ सही बात। मैं ये बात तो बता रहा हूँ, लेकिन मेरे को भाई साहबा भी इस बात को कहते थे, ताबेन भी कहते, तबे ताबेन भी थे, लेकिन आज जो लोग ताल्लुक से कहते यार ये आप गलत बोल रहे हैं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, तो उनको लगता है कि मेरी तौहीन कर दी है। अब मुफ्ती आज़म की नमाज हज़रत शेखुल मशाइख मुफ्ती मुख्तार अशरफ साहब कच्छुद्दीन ने जनाजे की नमाज पढ़ाई। अब ये करामत ताजुशरी किताब लिखी मौलाना शहाबुद्दीन ने, और एक हयात ताजुशी, दोनों में लिखवा दिया कि ये गलत मशहूर है कि मुख्तार अशरफ साहब ने पढ़ाई है, बल्कि मुफ्ती अख्तर रज़ा साहब ने पढ़ाई है नमाज। हाँ, तो जाहिर सी बात है कि अब उनको नहीं लगता है कि उन्होंने पढ़ाई है, तो वो कह रहे हैं अपने हिसाब से। बताइए कितना सफेद झूठ बोल रहे हैं साहब। तो जो झूठ बोलेगा तो उसकी ताजीम भी तो जाती है ना। हाँ, खुद अभी मौलाना तौसीफ रज़ा साहब उनके खानदान वालों ने ऐलान किया कि नहीं मुख्तार अशरफ साहब ने ही पढ़ाई थी नमाज। क्या कह रहे हैं कि भाई अगर वो मुख्तार अशरफ साहब ने पढ़ाई है और वो मुझको इनकार कर रहे हैं तो झूठ बात हुई ना। झूठ है, कितना झूठ है, पूरी दुनिया झूठ का जो मुर्तकिब होता है उस पर उसकी जो है तौहीन लाजिम है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, खत्म बात है। अपनी जबान से खुद अपने कलम से जो है तो खुद अपनी कलम से जो है तौहीन के लिए जो है इंसिस्ट कर रहे हो तुम। हाँ, ये करामत ताजुशरिया किताब में लिखा शहाबुद्दीन ने। और ये दो नमाजें हो नहीं सकती। ये कहते हैं दूसरी नमाज अगर ने पढ़ाई, दूसरी नमाज कैसे पढ़ा देंगे? इतने बड़े मजमे में दो नमाजें कैसे हो जाएंगी? दो नमाज की बात ही नहीं है। अगर जो है जो घर का जो फर्द है उसने नमाज पढ़ा दी, मेन आदमी जितना है, जो भी जिसने हुक्म दिया, कैसे बाहर आदमी पढ़ा सकता है? ये कोई बताएगा? कैसे पढ़ा सकता है? दूसरी नमाज में कितना मजमा था? दूसरी तीसरी की बात ही नहीं है। अगर घर के अफराद ने नमाज पढ़ ली, फर्ज कफाया है। और अगर घर के नमाज ने पढ़ ली है तो दूसरा कैसे इमामत के लिए खड़ा होगा? अपनी सुन्नियों में दस्तूर है, जनाजे के बाद दुआ भी करते हैं, उसमें भी टाइम लगता है, तो दूसरी नमाज कैसे पढ़ा देगा? अरे ठीक, वो हम क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, कहने दीजिए। नहीं, मैं कह रहा हूँ ये दूसरी नमाज पढ़ाने वाला था कहाँ खड़ा था? अरे भाई आज का दौर ये है, किताब कोई लिखता है और मुसन्निफ कोई हो जाता है। हाँ सही देता है, ये आपने बहुत अच्छी बात की। हाँ, तो इसलिए उसको उस पर तो जाइए ही नहीं। बिल्कुल सही बात है। किताब किसी की होती है, मुसन्निफ कोई होता है। नहीं हजरत, मैं तो कच्छूचा शरीफ भी गया हूँ, हजरत शेखुल इस्लाम शेख मुख्तार अशरफ साहब से ही मेरी मुलाकात हुई, उनके साथ खाना खाया मैंने। उनके अंदर ऐसी बातें नहीं थी कि बरेली से मुरीद ना हो, तुम्हारे से ना हो, पहले के लोगों में ये बातें नहीं थी। अरे ये कभी नहीं रहती थी। मैं तो यहाँ तहरीक में काम कर रहा हूँ लखनऊ में जी, समझ गए। और तकरीबन मुझे करते करते 30-35 साल हो गया अहले सुन्नत वल जमात के फरोग व फलाह बहबूदी के लिए। जी जी जी, ठीक है। जब भी कोई आया यहाँ पे, पहले तो यहाँ बिल्कुल ही पूरी तरीके से सुन्नियत जीरो थी। हाँ, जीरो थी और वहाबियत पूरी तरीके से गालिब थी यहाँ पर। लेकिन हम लोग उस समय, अगर हम लोग को ने कभी ये सब तहरीक नहीं चलाई कि तुम उनसे मुरीद ना रहो, तुम उनसे मुरीद ना हो, या उनसे मुरीद हो या उनसे मुरीद हो, जो जिससे चाहे मुरीद हो जाए। ये सब बातें ही नहीं थी कि मुरीद कौन किससे हो रहा है किससे नहीं हो रहा। पहले ये तो है कि सिलसिले से जुड़ जाओ ताकि अपने आप को जो है एक
किसी गुमराहियत में फंसने से अच्छा है कि किसी नेक आदमी के दामन से जुड़ जाओ। अब ये दाऊद इस्लामी वाले जबरदस्ती इलियास अख्तर का मुरीद करा लेते हैं। अरे भाई वो पाकिस्तान में, तुम इंडिया में जबरदस्ती क्यों मुरीद करा रहा हो? कोई मुख्तार अरशद साहब से, कोई किसी से, तुम सबको उसका ही मुरीद करा रहा हो दाऊद इस्लामी वाले। पीर साहब गौस पाक से करा दे रहे तो क्या बचा है? हाँ डायरेक्ट भाई, तुमने गौसे पाक को देखा नहीं और एक बेनमाजी का हक गौसे पाक के हाथ में दिलवा रहा हो। बड़े पीसा फरमाते बेनमाजी को मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन मत करो। उन्होंने तो कत्ल तक का फतवा दिया कि अगर नमाज न पढ़े तो कत्ल करना चाहिए। पीर साहब गौस पाक से करा दे रहे थे, मुरीद साहब पीर साहब से करा दे रहे हैं। बताइए, इलियास काजी के मानने वाले उसका मुरीद करा रहे हैं। लखनऊ हो, पाकिस्तान से जो है वो पाकिस्तान से जो है इराक में मुरीद करा रहे थे, ये इंडिया से पाकिस्तान में मुरीद करा रहे हैं। बहुत अच्छी बात आपने बताई। ये इलियास काजी अपने बाल को बाल मुबारक के बढ़वा कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल की बराबरी कर रहा है। ये तो अब आम होता जा रहा है। ये भी तौहीन का पहलू है, ये भी अब आम होता जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब हर आदमी जो है अपने अब्बा का अपने अब्बा का जो है बाल मुबारक ले करके और दिखाएगा कि मेरे अब्बा का और जियारत कराएगा। ये सब तो कयामत की निशानी है। ये यात्रा के नारे अपना मीलादनामा पढ़वाया और टीवी को लिखा इसने कि टीवी को मारो शैतान को। आज खुद घर घर में रखवा रहे हैं। मदनी चैनल जो देखेगा जन्नत में जाएगा। इसने लिखा वसाइल बख्शिश में। ठीक है। सफर 27 में हजरत लिखा फैजान सुन्नत ने कि लांडी के कब्रिस्तान में जितने लोग गए थे सबको बख्श दिया गया और जिसको अल्लाह के रसूल का दीदार हुआ उसकी बख्शिश नहीं हुई। ये खुली तौहीन किए थे सफर 27 फैजान सुन्नत में। अरे जिसने जो किया उसके अमल उसके साथ जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि सफर 27 पे नई में 44 पे तो इस पर फतवा नहीं लगाते हैं कि देवबंदी। अच्छा आप जानते हैं सुन्नी इज्तिमा में देवबंदी आते हैं, बरेलवी इज्तिमा में दोनों एक दूसरे के इज्तिमा में शरीक होते हैं। इसके इज्तिमा में लांडी में ऐसा तो नहीं सब सुन्नी थे, देवबंदी अहले हदीस सब शामिल हुए। सबको इसने जन्नती माना इलियास काजी ने, सबको। और एक तरफ आला हज़रत का नाम जपता है कि रोटी खाने ज़कात सबसे पूरे दुनिया से चंदे कर रहे हैं, पूरी दुनिया से। कमर्शियल दौर चल रहा है। वो तो खतीब आजम हजरत मौलाना कारी हनीफ कुरैशी साहब को अल्लाह सलामत रखे, वो सुल्तानुल मुनाज़रीन है, उन्होंने इनको नंगा कर दिया दाऊद इस्लामी वालों को पूरी दुनिया में। आज ये जलजला आ गया दाऊद इस्लामी। हजरत कारी हनीफ कुरैशी अकेले मर्द कलंदर हैं और सुल्तानुल मुनाज़रीन है, ताजदार अहले सुन्नत है इस दौर के। उन्होंने अकेले ने हिम्मत करके इनको सामने लाया पब्लिक के। देखो ये कितना चंदा कर रहा है। इंग्लैंड में 31 अरब चंदा किया और 5 अरब लगा, बाकी 26 अरब पेटों में दलालों में जा रहा है। हजरत एक एक दलाल को 50-50। दुनिया में 2-3 कौमें ऐसी हैं जी, एक जो मारवाड़ी, हाँ, एक गुजराती, हाँ, एक मेमन, और तीसरा जो है आपके जो है उसका मेमन। हाँ हाँ ठीक है। हाँ बिल्कुल। इनके हालात ये हैं कि ये बिजनेसमैन लोग हैं। अरे वो तो अपने धंधे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आपने समझ गए, बहुत पॉइंट की बात तो इनका मामला ये है कि इनको अगर ये जन्नत और दोज़ख का फैसला भी करना हो मुताफरियन कह रहा हूँ इस बात को, नहीं वो जहाँ 2 पैसे का फायदा होगा वहाँ चले जाएंगे। तो लिखा तो वसाइल बख्शिश में इलियास काजी ने कि ये मदनी चैनल तुमको इंशाल्लाह बाग़े जिन्ना दिलवाएगा, यानी जन्नत दिलवाएगा। यानी टीवी खरीदो 10,000 रुपए की और नहीं वो दिलाएगा, वो तो अलग है, ये तो एडवर्टीजमेंट है। हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ, वो आपने सही कहा, मैं समझ गया, वो आपने सही बात की कि ये कुछ भी कर सकते हैं। जन्नत पे जाने का फैसला हो तो ये कहेंगे जहाँ 2 पैसे का फायदा हो उधर चले जाएंगे। हाँ, कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल हजरत सही आपने बात की। अब बरेली वाले तो उसको सुन्नी नहीं मान रहे और ये जबरदस्ती आला का नाम जप रहा है और पूरा सफर का महीना इसने मदनी चैनल पे आला हजरत के लिए बुक कर दिया और एक दिन भी इसने इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हजरत इमाम बाकर, ठीक है, कुछ लोग बैठे हैं। जज़ाकल्लाह, मैं आपका पैगाम पहुँचा दूंगा। ठीक है, ठीक, हमारा कोई पैगाम ही नहीं, क्या नहीं इंशाल्लाह। बस यही कि हजरत का ये राय है कि हमारा हमने कोई अपना पैगाम दिया नहीं। आपका बस ये राय है कि जिसने तहकीक की हो वो जाने, इमाम काबा मस्जिद नबवी की इमाम की, वो जाने के उससे पूछा हो, उसने तूने तकलीफ ईमान पढ़ी है, इमाम से पूछा, सिरात मुस्तकीम पढ़ी और उस पर पूरा तबसरा किया, उससे क्या मानते हो भारत, वो जानते भी नहीं इनकी। आपने मुझसे कहा कि आप मुझे बताइए, मैंने कहा मैं कैसे बता सकता हूँ, किसी के बारे में मुझे मालूमात नहीं है। नहीं, ये आपने बस ये आपने मुनसिफाना फैसला ना मैंने मोहर लगा दी है कि आप पढ़ सकते हैं। नहीं, आपने मोहर भी नहीं लगाई ना आपने कहा। आपने तो कहा कि भाई जो जाने वो जाने, जिसने देखा हो। हाँ भाई, जिसका दिल भरे, जिसका ईमान हो, जिसका अकीदा, वो जाने, मुझसे क्या मतलब है। नहीं, आपने बहुत अच्छी हुई है बीच वाली बात आपने बताई कि भाई हमें तहकीक नहीं तो हम काफिर नहीं कह सकते, ना उसको हम वो कह सकते कुछ। हाँ, किसी के बारे में ये है कि आदमी जिस सोबत में रहता है आदमी उसको उस हिसाब से समझता है। बहुत अच्छी बात है। आदमी जैसे चोर के साथ बैठा हुआ जब बल्कि ईमानदार है,
हाँ बेशक, लेकिन लोग उसको जो है कहेगा ना कि चोर की टोली में बैठा तो चोरी होगा। बिल्कुल बिल्कुल हजरत, बहुत अच्छी बात की हाँ, हजरत। समझ गए। तो मैं भी लिहाजा आपको ऐसी सूरत हाल में जो है, जो जमात है, जो मामलात है, जो कुछ है, लेकिन अभी जैसे मौजूदा दौर में देखा जा रहा है कि वहाँ के जो हालात हैं, जिससे कि मुतव्वो की जो जोर था वो उससे कमी आई है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तो हर जमाने में हजरत कयामत भी तो आना है ना, मेरे हाँ। फराज में से वो भी तो निकलेगा, सोने का पहाड़ है। अब हम देख रहे हैं कि वहाँ पे लोग सलाम भी पढ़ रहे हैं, वहाँ पे हम देख रहे हैं कि लोग दुरूद भी पढ़ रहे हैं, वहाँ पे हम ये देख रहे हैं लोग मौला अली का जिक्र भी करने लगे हैं। मक्का अब शरीफ में शख्सी अब हाँ, मक्का मदीने में अब कोई इतना जिक्र भी, अब उतना वो भी नहीं रह गया। बताइए, अब ये लोग बिला वजह बदगुमानियां पैदा करते हैं हजरत, सब कुछ होता है। हम अजमेर शरीफ नहीं जाते हैं, ज्यादा होता नहीं, भीड़ मतलब अब थोड़ा सा लोगों के लिए ढील दी गई, इसको बोलते हैं। नहीं नहीं सही है हजरत। हाँ, समझे। हम अजमेर शरीफ जाते हैं तो वो अंदर से निकालते हैं, ज्यादा भीड़ होती है निकालते हैं। अगर माँ रोज़े रसूल के सामने सबको खड़ा हो जाने दें तो 50 लाख आदमी कैसे हाजिर देगा, फिर कैसे अल्लाह के रसूल की बारगाह में सलाम पेश करें। जाहिर सी बात है, हैं? वो तो है ही। मैंने कहा ना कि वहाँ तो वहाँ का निजाम अपने निजाम को चलाते हैं, कैसे चलाते हैं। अजमेर शरीफ जाते हैं तो भाई वहाँ, अजमेर शरीफ मैं जाता हूँ, हाँ मैं अंदर नहीं जाता हूँ, हाँ, सही बात है। मैं अंदर नहीं जाता हूँ, मैं बाहर से फातिहा पढ़ता हूँ। हाँ, वो भीड़ भाड़ की जाती है। और अंदर तब जाता हूँ जब कोई खादिम कहता है हजरत आप चलिए और हम जो है अब आपके हिसाब से खाली करवा देते हैं। तो सामने के दरवाजे से एंट्री किया, हाँ। और एंट्री करके वहाँ सामने गए और दस्तबोसी करके और फौरन जो है बाहर निकल के जो बरामदा वहाँ खड़े होकर फातिहा पढ़ लिया। यही मैं भी यही करता हूँ, कभी कभी तो अंदर पढ़ लेता हूँ फातिहा और वो दुआ भी अब मांग लेता हूँ। अंदर जैसे कि अब खाली है, धक्का मुक्की नहीं है, हाँ, किसी को तकलीफ, आपकी जात से किसी को तकलीफ ना पहुंचे और आप आराम से किनारे खड़े होकर फातिहा पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए। हाँ, बस तो मैं भी ऐसे ही करता हूँ, जब भीड़ ज्यादा ना हो तो पढ़ लेता हूँ, तो बाहर आके पढ़ लेता हूँ। हजरत आप किसके मुरीद हैं? शेख मुख्तार अरशद साहब। ठीक है फिर है। किसके मुरीद हैं हजरत आप? शेखुल मशाइख मुख्तार अरशद साहब के हैं? आप किसके? मुख्तार अरशद साहब के मुरीद हैं क्या? जी 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 उनके ही हैं। जी जी। ठीक है साहब, जज़ाकल्लाह, बहुत खुशी हुई साहब, जज़ाकल्लाह।